ये है कि प्रोग्राम फ्लो चार्ट को हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। प्रोग्राम फ्लो चार्ट आपको ये पेज सामने नजर आ रहा है फ्लो चार्ट का? Yes, sir. Okay, that's fine. Program flow chart is basically the graphical representation for the logic, mean whatever you plan for the solution, that is basically considered as logic. How you are able to have the solution, how you are going to define the steps for solution, that is basically considered as logic. In order to represent the logic, we are having two types of representation. First one is considered as graphical representation, and second one is considered as textual representation. If we are considering graphical representation, then we shall consider or we shall label the tool as program flow chart. And if we are going to consider the textual representation, then we shall consider or we shall label it as a pseudo code. Just like you can consider that text which is selected right now, that is basically the part of program flow, pseudocode. So what we are going to define, we need to understand the both aspect, whether that is the textual representation or the graphical representation. Initially, we have to consider the graphical representation for the solution of the problem. So for that cause, first of all, we need to understand the symbols which are actually the building block for the program flow chart. So from your screen, you will be quite familiar that this is a parallelogram. This is basically utilized for two purposes. If we are willing to represent the input or for output, then we have to utilize parallelogram. Parallelogram will be utilized for the both purpose, for the input purpose and for the output purpose. Mean, if we are willing to input data, if we are willing to display some output, these are basically the input or output. So in order to represent input or output, we may utilize parallelogram. This symbol will be utilized to represent input or output. For both, we can utilize this thing. In order to represent the process, operation, mean addition, subtraction, multiplication, or any other operation, in order to represent that operation, normally we are calling it processing. In order to represent the processing in your program, we are going to utilize the rectangle symbol. Rectangle symbol will be utilized for the processing purpose. In order to represent a process, we need to utilize rectangle. Okay. After rectangle, we can have the diamond shape. This one. This is basically utilized for the decision purpose. For the decision purpose. Mean, whenever you are appearing in the exam, we may have the two possibilities: you will be pass or you will be fail. This deals with selection. Whenever selection will be required, then we have to utilize this diamond shape symbol. Is for the start and exit representation. In order to represent the start of the flow chart, we are going to utilize this round rectangle symbol. And if we are willing to represent the exit from the flow chart, then again we shall utilize the symbol. That is why this symbol is labeled as terminal. So for a program flow chart, single entry and single exit will be required.
That is the rule for drawing program flowchart. More than one entry or more than one exit is not possible. So it means you just need to have a single entry or single exit. Only one start will be part of your program flow chart, and only one exit will be part of your program flow chart. More than one exit or more than one start for the program is no more possible. Then there is a symbol that is circle. This circle will be utilized for the connecting purpose. Mean, if we are having a program flow chart which is composed of more than one pages, which is composed of more than one pages, then in order to have the link of pages, we may utilize connector. Similarly, for more than one branches, if we need to integrate them, we may also utilize connector. So connector will always be required whenever we will require the connectivity that may be of different pages or that may be of different branches. So that is why this is labeled as connector symbol. And then arrow. Arrow represents the direction of data flow, direction of control flow, direction of control flow. So I have just defined the symbol, which are basically the building block of program flow chart. I have defined parallelogram for input output purpose, rectangle for processing purpose, diamond shape for decision purpose, for selection purpose, a round rectangle for start and exit, circle for connectivity purpose, and arrow for direction of control flow. So these are the symbols which we need to utilize in drawing of program flow chart. If anyone is having problem in this case, let me know. हाँ जी, कोई प्रॉब्लम हो किसी को? No, sir. No सर problem. टर्मिनल रिपीट कर दे. Terminal is basically utilized for start and exit. प्रोग्राम फ्लो चार्ट को स्टार्ट कहां से करना है उसके लिए टर्मिनल सिंबल होगा, उसको खत्म कहां पे करना है उसके लिए टर्मिनल सिंबल होगा। लेकिन आपके फ्लो चार्ट में, प्रोग्राम फ्लो चार्ट में सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्ट होगा, एक एग्जिट होगा। एक से ज्यादा स्टार्ट या एक से ज्यादा एग्जिट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक होगी बात? खैर, इसको यूटिलाइज करेंगे तो फिर हम लोग इसको देखेंगे कि इसका एक्चुअली यूजेज कैसे हमने परफॉर्म करना है। जनाब, कोई प्रॉब्लम और इसके अलावा? नो सर। ओके, दैट्स फाइन। अब मैंने आपको ये बताया कि प्रोग्राम फ्लो चार्ट बेसिकली कहाँ रिक्वायर्ड है? जहां पर हमने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने डिजाइन करना है, फिर उस सॉल्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोग्राम फ्लो चार्ट की जरूरत है। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें हैं। दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपने उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आपको सिर्फ तीन चीजों पर कंसंट्रेट करने की जरूरत है। पहली चीज कहलाती है सीक्वेंस, दूसरी चीज कहलाती है सिलेक्शन, और तीसरी चीज कहलाती है आइटरेशन। मैं फिर डिफाइन कर रहा हूं। एवरी पॉसिबल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, चाहे आप उसको डेली लाइफ में कंसिडर करें, चाहे इंफॉर्मेशन सिस्टम के रेफरेंस से कंसिडर करें, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए तीन कंस्ट्रक्ट्स होते हैं। उन तीन चीजों को अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यू मे हैव द सॉल्यूशन। So what the idea is, first thing is called sequence.
Second thing is called selection, and third one is called iteration. Now we need to recognize what do we mean by sequence, what do we mean by selection, and what do we mean by iteration. Sequence mean in particular order, mean the order in which the different activities will be performed. Now you may consider that with reference to your BBA degree program, you are admitted in first semester, then second, then third, then fourth, and so on. What this defines? Sequence. Sequence mean particular order. Sequence mean particular order. How the activities will be performed in order to have the solution, sequence will be considered, sequence will be defined. Okay, so sequence mean in specific order, how we can have the solution. Okay, assuming if I'm willing to drink a glass of water, then first of all I should pick the glass, fill it with water, and then we'll drink. Mean this is the sequence for the solution which I am requiring. So what I am willing to define, sequence mean the particular order in which the activities will be performed in order to have the solution. After sequence, we are provided another thing that is called selection. That is called selection. Selection mean, again, I have quoted you earlier, whenever you are going to appear in the exam, you may have selection. You will be pass or you may be fail. No such student can be there who will be pass and fail both in one subject. So what the idea is, if we are going to consider selection, I mean choices. I mean choices. Now, with reference to your subject, now you are having the possibility of A grade, B grade, C grade, D grade, and F grade. How many different possibilities? Five. But again, you are going to select one of them. Okay? Action. We are having five choices. This is called selection. I have quoted you earlier that for the selection, we are going to utilize the diamond shape symbol. After selection, the third construct is iteration, or we are calling it repetition. Iteration or repetition. So, over the idea behind is repetition mean assuming you have enrolled a subject, assuming you have enrolled MIS subject, then of course you are attending the classes, you are submitting the assignment, you will be appear in midterm exam, you will appear in final term exam, you will appear in practical term, and then of course your result will be declared. Assuming you are unlucky enough to fail the subject, then what do you need to perform? You need to repeat the all things. What are all these those things? You need to re-enroll the course, you need to re-attend the classes, you need to reappear in mid final and so on. So it means all the processes which you have performed earlier, you are going to perform it again. What this will be considered? Repetition, or we are utilizing an other terminology that is called iteration.
You will be quite familiar with this iterative word because in SDLC we have said that system development is always an iterative approach. What was that? Repetition. So, whenever we need to repeat the processes or input or output, whatever the things which we are willing to repeat, if we are repeating it, then we are calling that we are utilizing iteration. So, these three constructs we may consider sequence, selection, and iteration. These are being utilized in order to have the solution. So any problem regarding this construct? No, sir. No problem, ji. Okay, now we need to understand all the things one by one. First of all, sequence. Sequence, I have defined that in particular order. Now, what the problem is, I want to divide two number. What will be the textual representation for the solution of such problem is, first step is get number 1, second step is get number 2, third step is answer equal to number divided by number 2, and fourth step is display answer. This is the textual representation for the solution of the problem, and we are calling it pseudocode. And we are calling it pseudocode. So it means again I am providing the textual representation for the solution of the. Now, how we are going to represent it graphically, we need to recognize the things. Now, this is the graphical representation for the solution of the problem. You may consider the start symbol. In earlier, we have recognized the symbol. We have considered that this round rectangle will be utilized for the terminal, for the representation of start and exit. Now, this symbol will be utilized, and we are labeling the symbol, what it defining that we are going to start the flow chart. So this is the start of our flow chart. This symbol represents start of flow chart, and this symbol represent end of flow chart. So what it means, terminal symbols will be utilized for the flow chart. Single start and single exit. More than one start or more than one exit is no more possible. Now what we need to perform? Start. Then what the first step is? Input number 1. That is the input. We need to read the data from the user. What we are going to perform? We are getting data, mean from the keyboard we shall input data. Input number 1, get number 1. As it is input will be represented using parallelogram. So this is the parallelogram to represent get number 1. Now, what it is defining sequence. Initially, we start the flow chart, then we input the first number, then we input the second number. Okay? Then we perform the process. Now, division is a process. Answer equal to number divided by number 2. So we are going to utilize a rectangle symbol to represent the process. Then we need to output the result, answer. That is again the output. We are again utilizing parallelogram. And then we are exiting or we are end the thing. So what it defines? It defines the sequence. It defines the sequence. Sequence mean particular order.
So it means all the activities, assuming if I'm going to start and then displaying answer, after that I'm going to calculate the answer, and then I am inputting number one, number two, that will not provide me accurate result. So the sequence is important. So for that cause, we need to understand with which way we need to perform the different operation in order to have the solution. So for that cause, what we are going to perform, we are going to input number one, input number two, and then a process for calculation division of them, and then the output, and then the exit. So this is the representation for the sequence. हाँ भाई, सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम? No, sir. इसमें कहीं पर सिलेक्शन नहीं है, कहीं पर आइट्रेशन अभी इस्तेमाल नहीं हो रही, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा था, दो नंबर को इनपुट करना है और उनको डिवाइड करना है, तो उसके लिए सिर्फ सीक्वेंस की जरूरत थी. ओके, ठीक होगी बात भाई. अब आ गया सिलेक्शन. सिलेक्शन में हमने देखना है कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ प्रॉब्लम क्या गिवन है, गेट नंबर वन इनपुट करना है, नंबर टू इनपुट करना है. अगर नंबर टू 0 है तो डिस्प्ले करना है कि वो डिवाइड बाय 0 को एरर है, क्योंकि अगर हम 10 डिवाइड बाय 0 करते हैं तो कंप्यूटर इस काबिल नहीं है कि वो 10 डिवाइड बाय 0 को सॉल्व कर सके, वो वहां पर प्रोवाइड करता है डिवाइड एरर. तो हम कहते हैं कि ये एरर अगर कभी आए तो हमें वो रिप्रेजेंट कर दे, मैसेज दे दे कि भी डिवाइड बाय 0 एरर है. ठीक होगी बात. अगर 0 नहीं है तो वो रेलेवेंट डिवीजन परफॉर्म करे और हमारा आंसर प्रोवाइड कर दे. दैट इज बेसिकली आवर प्रॉब्लम. मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दो नंबर को इनपुट करना है, फिर चेक ये करना है कि नंबर 2 0 नहीं हो. अगर नंबर 2 0 हुआ, देखिए अब कंडीशन इन्वॉल्व हो गई. अगर नंबर 2 0 हुआ तो एरर, डिवीजन एरर. और अगर नंबर 2 0 नहीं हुआ तो फिर अकॉर्डिंगली हम उसका आंसर कैलकुलेट करेंगे. ठीक होगी बात. दैट इज बेसिकली द, यू कैन से, आवर प्रॉब्लम. अब हम इसको, ऑफ कोर्स सिलेक्शन इन्वॉल्व है, तो हम सिलेक्शन कंसीडर करेंगे कि इसको परफॉर्म कैसे करनी है. स्टार्ट. नंबर 1 इनपुट किया, नंबर 2 इनपुट किया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, अब उसके बाद है कि नंबर 2 0 है या नहीं. दो पॉसिबिलिटीज हैं. सबसे पहले हमें कंडीशन को रिकॉग्नाइज करना है. कंडीशन क्या है, नंबर 2 इक्वल टू 0. दो पॉसिबिलिटी है, यस, नो. ये है ब्रांचेस जो मैंने इनिशियली आपको कहा था कि सिलेक्शन के अगेंस्ट हमें ब्रांचेस मिलती हैं. जैसे पास या फेल, दो ब्रांचेस हैं, और अगर यही काम ग्रेड्स का हो तो 5 ब्रांचेस हैं. तो यहां पर अगेन हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है. अगर नंबर 2 0 है तो वो मैसेज क्या देगा, डिवाइड बाय 0 एरर, और एग्जिट कर जाएगा. जरा ये बात चेक करें. अगर नंबर 2 0 है, यस, मैसेज देगा और उसके बाद एग्जिट कर जाएगा. एरर दिया और एग्जिट कर गया. लेकिन अगर ये नंबर 2 0 नहीं है तो वो नो वाले पाथ को फॉलो करेगा. नो वाले पाथ को फॉलो करने के बाद वो आंसर कैलकुलेट करेगा, उस आंसर को डिस्प्ले करेगा और एग्जिट कर जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लोग कंसीडर करें तो सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट, सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट. अगेन मोर देन वन एंट्री मोर देन वन एग्जिट पॉसिबल नहीं है. इनिशियली हमने नंबर 1 को इनपुट किया, फिर हमने नंबर 2 को इनपुट किया, फिर नंबर 2 को चेक किया वो 0 है या नहीं. यहां पर कंडीशन इन्वॉल्व है. अगर है तो मैसेज दे दिया, डिस्प्ले क्योंकि हमने प्रिंट के तौर पर देना है, इसलिए पैरेललोग्राम इस्तेमाल होगा और उसके बाद एग्जिट. और अगर ये 0 है, 0 नहीं है, तो फिर हमने आंसर कैलकुलेट किया, दैट इज नंबर 1 डिवाइड बाय नंबर 2, उसके बाद आंसर को डिस्प्ले किया और एग्जिट कर लिया. तो इसका मतलब क्या हुआ
कि नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द सिलेक्शन, क्योंकि अब सिर्फ 2 ब्रांचेस हैं, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं बाई डायरेक्शनल सिलेक्शन। बाई डायरेक्शनल सिलेक्शन, हमारे पास सिलेक्शंस की एक बाई डायरेक्शनल है और दूसरा हमारे पास है मल्टी डायरेक्शनल। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपने एग्जाम दिया तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, पास और फेल, 2 चॉइसेस, इसको हम बाई डायरेक्शनल का नाम देते हैं। इसी तरह जब आपने एग्जाम दिया तो आपके पास 5 चॉइसेस हैं, उनमें से कोई एक आपकी होगी ग्रेड्स के रेफरेंस से, तो दैट इज कॉल्ड मल्टी डायरेक्शनल। ठीक होगी बात भाई? अभी जो हमने एग्जांपल देखी दैट वाज रेलेवेंट टू बाई डायरेक्शनल, कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ भाई, नो सर, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। गुड। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं जी कि अगर आइट्रेशन को परफॉर्म करना हो तो वो कैसे करना है। पहले हम प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद हम लोग आइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं। इस आइट्रेशन को परफॉर्म करने के बाद इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपने कोशिश करनी है, और जो हो जाए वेल एंड गुड, जो नहीं होंगी हम उसको फिर सेपरेटली पेज पर परफॉर्म करते रहेंगे। Repeat a set of instruction a number of times based on conditional stated. This loop will end when condition has been fulfilled. देखते हैं क्या है। सबसे पहले टोटल को 0 किया, गेट नंबर इनपुट कर दिया। while नंबर इज लेस देन 1000, जब तक नंबर 1000 से लेस होगा वो टोटल में उस नंबर को ऐड करता जाएगा और फिर आपसे नंबर इनपुट करेगा। और ये काम कब तक चलता रहेगा? जब तक नंबर लेस देन 1000 होगा। बेसिकली है क्या, आपने एक नंबर इनपुट करते जाना है। कब तक इनपुट करते जाना है? जब तक वो नंबर लेस देन 1000 होगा। जो नंबर आप इनपुट करेंगे वो टोटल में ऐड होता जाएगा, वो टोटल में ऐड होता जाएगा। जो ही आपने नंबर 1000 से ऊपर वाला इनपुट किया तो उस वक्त जो टोटल की वैल्यू है वो डिस्प्ले कर दे। ठीक होगी बात? जरा देखते हैं इसको परफॉर्म कैसे करना है। मैं फिर कह रहा हूं, जरा इसका जो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन है वो देख लें। टोटल को 0 कर दिया हमने, नंबर इनपुट कर लिया यूजर से, यहां पर कंडीशन लगा दी कि while नंबर इज लेस देन 1000। याद रखना है, आइट्रेशन हो तब भी कंडीशन आएगी, सिलेक्शन हो तब भी कंडीशन आएगी। दोनों में फर्क क्या है कि अगर सिलेक्शन होगा तो वो वंस परफॉर्म होगी, और अगर आइट्रेशन है तो वो मैनी टाइम्स परफॉर्म हो सकती है। ये सिलेक्शन और आइट्रेशन में फर्क है। तो अब ये क्या कहता है कि नंबर जब तक 1000 से लेस है, नंबर इनपुट किया ना, मैंने इनपुट किया 100 लेस देन 1000 है, ठीक हो गया। वो टोटल में ये 0 है, 100 मैंने इनपुट किया तो टोटल की वैल्यू हो गई 100। फिर दोबारा मुझसे नंबर इनपुट करेगा, मैं कहता हूँ जी 200, वो दोबारा यहां पर कंडीशन पर जाएगा, 200 इज लेस देन 1000, ट्रू। यहां के बाद वो दोबारा कंडीशन पर जाएगा। डू और एंड डू का जो पार्ट है ना, ये इसका इश्यू है, इस लूप का पार्ट है, इस आइट्रेशन स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये प्रोसेस उस वक्त तक होता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इस स्ट्रक्चर को परफॉर्म नहीं करेगा, वो उसे नेक्स्ट परफॉर्म करना शुरू कर देगा। चलो इसको देखते हैं। स्टार्ट टोटल इक्वल टू 0, गेट नंबर, यूजर से नंबर इनपुट किया, नंबर इज लेस देन 1000, यस नो। नंबर इज लेस देन 1000 अगर नो है तो टोटल डिस्प्ले करे और एग्जिट कर जाए। सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट, ठीक होगी बात? हाँ, अगर नंबर लेस देन 1000 है, ट्रू है, तो वो टोटल में नंबर को ऐड करेगा और यहां से देखिए दोबारा क्या कर रहा है, गेट नंबर। अज्यूमिंग मैंने 100 इनपुट किया, ये ट्रू हुआ, उसने टोटल को 100 कर दिया
वो दोबारा यहाँ पर है गेट नंबर, मैंने 200 इनपुट कर दिया, 200 इज लेस देन 1000, ये भी ट्रू है, तो टोटल में वैल्यू 100 थी, नंबर 2 अब 200 आया, टोटल 300 हो गया, दोबारा से वो नंबर को गेट करेगा, मैं अब इनपुट करता हूँ 2000, 2000 इज लेस देन 1000, फॉल्स, नो हो गया, तो टोटल को वो डिस्प्ले कर देगा, टोटल में वैल्यू 300 है और एग्जिट कर जाएगा। So this structure represents iteration. ठीक होगी बात? तो जो चीज मैं डिफाइन करना चाह रहा था वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे पास 3 कंस्ट्रक्ट्स हैं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम: सीक्वेंस, सिलेक्शन, आइट्रेशन। सीक्वेंस हर दफा हर चीज का कंपल्सरी पार्ट है। सिलेक्शन, आइट्रेशन डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम की नेचर पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इनकी कॉम्बिनेशन को यूटिलाइज करना है इन ऑर्डर टू हैव द सॉल्यूशन। अब हमारा काम यहाँ पर ये डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन है, आपने सिर्फ इनको यूटिलाइज करना है। एक्सरसाइजेस हैं जी। सर अगर वो नंबर 1000 हो जाए तो क्या करेंगे फिर हम? अगर एग्जैक्टली 1000 हो जाए, लिखा है जी सर। यहाँ पर नंबर इज लेस देन 1000, तो अगर मैंने 1000 इनपुट किया तो 1000 इज लेस देन 1000, फॉल्स नहीं होता ना लेस, तो नो पे जाएगा, टोटल को डिस्प्ले कर देगा और एग्जिट कर जाएगा। इस कंडीशन पर जो भी वो चेक करेगा उसके बाद 2 ही पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, या ट्रू या फिर फॉल्स। मेरा बेसिकली सर ऑब्जेक्टिव अगर ये है, इसमें ये हो कि 999 हो जाए तो हम इसको यहाँ दोबारा से तो नहीं करेंगे ना, गेट नंबर या ये सब? मतलब वो आपकी अगर आपने कहा कि 999 तक तो वो रिपीट करेगा, तो सर लेस उसके देन बाद तो रिपीट नहीं करेगा। 999 हो गया, अब दोबारा से तो नहीं 999 होगा। हो गया, उसने टोटल में ऐड कर दिया, अब यहां से फिर वो दोबारा गेट करेगा, अब उसके बाद मैंने सिर्फ 99 इनपुट कर दिया। कुछ समझ में आई बात? ये तो इस सर इनपुट हमें पर तो नंबर चाहिए ना लेस देन 1000। अब 999 ऑब्वियसली 1000 से कम है, अब दोबारा से तो हम नंबर गेट नहीं करेंगे। हाँ, तो फिर हो दोबारा सकता है अगली दफा कोई और नंबर लेना हो सकता है 800 लेना हो नेक्स्ट टाइम, कुछ सॉल्यूशन की तरफ जा सकेंगे। यूजर का प्रॉब्लम ये है, वो ये कह रहा है कि आपने नंबर इनपुट करना है, अगर वो नंबर लेस देन 1000 हो, नंबर लेस देन, अगर वो नंबर लेस देन 1000 हो तो उसको टोटल में ऐड करते जाना है, ठीक है? और अगर वो नंबर 1000 से लेस ना हो, 1000 से लेस ना हो तो वो टोटल को डिस्प्ले करे और खत्म कर दे काम को। प्रॉब्लम अब समझ में आई बात कि नहीं? अब जरा अंडरस्टैंड करो, मेरे पास डाटा का सेट है, मेरे पास एक नंबर है 10, ठीक है? मैं 10 को इनपुट करता हूं, 10,000 से लेस है या नहीं? सर जी लेस है। लेस है, तो टोटल की इनिशियल वैल्यू 0, तो टोटल में ऐड करो तो टोटल की वैल्यू क्या हो गई? सर 10। 0 प्लस 10 10 हो गई। टोटल की वैल्यू 10 है, नंबर की वैल्यू 10 है, और वो जो नंबर है वो लेस देन 10 है। ये बात क्लियर? जी सर। अब दोबारा नंबर इनपुट करो, क्योंकि ये लेस देन 10, लेस देन 1000 है। दोबारा इनपुट किया 100, नंबर दोबारा इनपुट किया, दैट वाज 100, ओके? तो 100 जो है वो लेस देन 1000 है या नहीं? सर है। तो टोटल की वैल्यू क्या थी? सर 10। 10 में 100 ऐड करें, क्या बना? 110। टोटल की वैल्यू क्या हो गई? सर 110। 110 हो गई। वो दोबारा जाएगा, फिर वो इनपुट करेगा नंबर। अब नंबर की वैल्यू आपने इनपुट कर दी 40, नंबर की वैल्यू क्या इनपुट की? 40 लेस देन 1000 है? जी सर। ठीक होगी ना बात? यूजर ने जो इनपुट करना है हमने उस पर डिसाइड करना है। अब 40,000 से लेस है, टोटल की वैल्यू क्या थी? सर 110। 110 में 40 ऐड करें, 150। टोटल की वैल्यू क्या हो गई? 150। वो दोबारा से नंबर इनपुट करेगा,
उसने नंबर इनपुट कर दिया जी। सर हमने ये करते ही रहना है। जनाब यही तो रेपिटेशन है, अच्छा यही रेपिटेशन है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी हमने इसको परफॉर्म करते जाना है। एंड कब करना है, अब आ जाते हैं उस पर भी। अब 150 वैल्यू हुई ना टोटल की, उसने जी सर। दोबारा इनपुट किया नंबर मैंने इनपुट कर दिया जी 1020। 1020 क्या 1000 से लेस है? नो सर। नहीं, तो उसको क्या करना चाहिए, 150 को डिस्प्ले करना चाहिए और एग्जिट कर जाना चाहिए। मतलब वो डिस्प्ले वही टोटल करेगा जो उसके पास पहले से था। जनाब बिल्कुल वही करेगा। तो ये चीज है अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग होगी देन यू विल बी एबल टू हैव द सॉल्यूशन। जब तक प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग नहीं, सॉल्यूशन भी नहीं। क्लियर हुई बात? अब वो जो मैंने आपको बताया, इसको इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए कैसे करते हैं देखते हैं। स्टार्ट, टोटल की वैल्यू 0 कर दी, प्रोसेस है ये। फिर हमने इनपुट किया नंबर से 10 इनपुट कर दिया। 10 इज लेस देन 1000, यस, टोटल में वो ऐड कर दिया। फिर दोबारा से वो कहां पर गया, ये एरो इंडिकेट कर रहे हैं कंट्रोल फ्लो को, कहां पे गया, दोबारा से गेट नंबर किया। हमने 100 इनपुट कर दिया। 100 लेस देन 1000, ये भी यस, टोटल में 10 था, 100 आ गया, 110 आ गया, दोबारा से नंबर पे चला गया। हमने 40 इनपुट किया, गेट नंबर किया ना, 40 इनपुट किया। 40 इज लेस देन 1000, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये 4150 कर दी टोटल को, दोबारा गया, हमने 1020 इनपुट किया। 1020 1000 से लेस नहीं है, नो पर गया। डिस्प्ले टोटल, उसके पास 150 था, उसने डिस्प्ले किया और एग्जिट कर गया। हाँ जी, अब समझ में आई बात? और सर ये जो नंबर्स है, मतलब ये आपने जैसे पहले 10 बोला फिर 100, ये हमारे पास कहाँ से आएंगे? ये हम ये खुद ही हम assume लोगों ने करेंगे? देखिए ना, गेट नंबर है ना, गेट नंबर का मतलब है यूजर ने इनपुट करने हैं, यूजर की मर्जी है, वो ये चाहे ये सारा दिन रिपीट ही करता रहे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये वाला काम एंड कब होगा, जब वो नंबर 1000 से लेस इनपुट नहीं करेगा, तब एंड होगा, नहीं तो वो रिपीट ही करता रहेगा। ठीक होगी बात भाई? जी सर। चलो, ये प्रॉब्लम एक तो हो गई, आगे एक और प्रॉब्लम है, जरा उसको भी देखते हैं। जरा देखते हैं, ये स्टार्ट किया, आई कोई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 1 कर दी। प्रोसेस है, असाइनमेंट है, हमने आई की वैल्यू 1 कर दी। यहां पर कंडीशन लगाई आई इज लेस देन और इक्वल टू 12। आई की वैल्यू क्या है, 1। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 12, ट्रू है कि फॉल्स है? 1 12 से लेस है ना? जी सर, लेस। यस, तो रिजल्ट इज एग्जाम्पल वाले इक्वल के टू, लिए जी ये ऊपर वाली एग्जाम्पल के हिसाब से देखनी है। नहीं, हाँ, ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ये नया प्रॉब्लम है ये। उसमें वो कह रहा है जी कि हमने बेसिकली 9 के टेबल को डिस्प्ले कराना है, 9 का टेबल। समझ आई बात? अब 9 का टेबल 9 1s आर 9, 9 2s आर 18, लाइक दैट। तो पहले 1 होना चाहिए, आई की वैल्यू 1 कर दी। हमने चेक कर दिया, हमने सिर्फ 1 से लेकर 12 तक जाना है, ठीक है। जब तक वो 12 तक रहेगा ठीक है, जो ही 12 से ग्रेटर होगा तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। सिंगल एंट्री, सिंगल एग्जिट। अब आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 12, ट्रू। रिजल्ट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 9, रिजल्ट की वैल्यू क्या हो गई, 9। डिस्प्ले, ये उसने डिस्प्ले कर दिया, आई की वैल्यू 1 है, ये स्टार डिस्प्ले करेगा, 9 इक्वल एज इट इज डिस्प्ले करेगा और रिजल्ट की वैल्यू आ जाएगी 9। 1 स्टार 9 इक्वल टू 9, जैसे वो टेबल आता है ना वैसे लिखा हुआ नजर आएगा।
मतलब ये हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि ये डिस्प्ले हो रहा है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू तो 1 है, अब आई के 1 के बाद क्या होना चाहिए 2, तो आई में एक इंक्रीमेंट होना चाहिए, आई की वैल्यू 1 थी, अब आई में एक और 1 ऐड कर दिया, 2 हो गया। अब वो दोबारा यहां से आया इधर से, उसने चेक किया 2 इज लेस देन और इक्वल टू 12, ट्रू, रिजल्ट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18, ये डिस्प्ले किया सारा उसने। फिर आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 12, ट्रू, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27, डिस्प्ले कराया 4 हो गई। ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक वैल्यू 12 होगी, क्योंकि 12 आएगी तो 12 इज लेस देन और इक्वल टू 12, ट्रू। फिर ये कैलकुलेट करेगा, यहां पर हो गया 13, 13 इज लेस देन और इक्वल टू 12, फॉल्स, स्टॉप कर देगा। तो 1 से लेकर 12 तक 9 का टेबल ये डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर। ये है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम, और हमने अकॉर्डिंगली जो स्ट्रक्चर बनाया वो ये है। अब ये वाला प्रोसेस, ये कंडीशन, ये प्रोसेस, ये इनपुट, ये प्रोसेस, ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं। सो दैट इज व्हाई हम लोग कहते हैं आइट्रेशन may be utilized depending upon the nature of problem for the solution of problem. सिर्फ इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें, इस स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला हो। जनाब सर ये सबसे लास्ट पे जो होता है i इज इक्वल टू आई प्लस 1 और हर दफा जो है उसमें एक प्लस होते जाना है, उसकी समझ नहीं आई वो कैसे होगा। देखो ना, i की इनिशियल वैल्यू क्या है 1, हमें टेबल चाहिए 1 से 12 तक, तो वो 1 की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, एक इंक्रीमेंट करेंगे ना। मतलब हमने 9 1 9 कैलकुलेट कर लिया, डिस्प्ले करा लिया, फिर 2 होना चाहिए ना, तो फिर हमने 1 ऐड कर दिया इसमें। आई की वैल्यू 1 थी, 1 + 1, अब आई की वैल्यू 2 हो गई, ये 2 पर कैलकुलेट करेगा। जब 2 पर डिस्प्ले करेगा फिर आई में फिर हमने 1 ऐड कर दिया, अब आई की वैल्यू 2 है, 2 + 1 आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 कैलकुलेट करेगा, अब +1 होगा 4 हो जाएगा। तो ये काम कब तक चलेगा 12 तक। यही चीज कहलाती है लॉजिक। हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसके लिए लॉजिक चाहिए। उस लॉजिक को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट है। ये इतना आसान काम नहीं है, उन लोगों के लिए आसान होगा जो कि आईसीएस करके आए, उन्होंने ये अपने सिलेबस में प्रोग्राम फ्लो चार्ट पढ़े हुए होंगे। लेकिन वो लोग जो इससे पहले ये नहीं पढ़ा, उनके लिए ये इनिशियली इतना आसान काम नहीं होगा। उसके लिए हल क्या है, हल ये है, ये सारा का सारा आउटपुट वो शो कर रहा है, फिलहाल कनेक्टर को बाद में करेंगे। ये जो है ना एक्सरसाइजेस, स्पेशली 2 3 4, इनको जरा परफॉर्म करने की कोशिश करें, ठीक होगी बात। इनको परफॉर्म करें, लेट्स सी कहां तक आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जहां तक सॉल्व हो जाए वेल एंड गुड, और जहां पर ये प्रॉब्लम हो मुझको बता दीजिएगा। कितना टाइम चाहिए इसके सॉल्यूशन के लिए। ये चीज हमेशा एक्सरसाइजेस के साथ आनी है, बगैर एक्सरसाइजेस के नहीं आनी। हाँ जी, कितना टाइम चाहिए। परसों तक। परसों तक नहीं बीबी, 2 to 3 weeks सर। हाँ वीक सर मंडे तक कर लें। सर नेक्स्ट सर वीक मंडे तक कर। प्लीज। जनाब हम एक काम करते हैं कि आज है वेडनेसडे, यस सर। फ्राइडे को दोबारा मुलाकात करें हम। नहीं सर, जुम्मे को नहीं सर। नहीं सर, सर थोड़ा मुश्किल सर हो फ्राइडे को जाएगा पहले 2 फ्राइडे को। क्लासेस होती है हमारी। सैटरडे को कर लेते हैं। सर मंडे को मिलते हैं ना। सैटरडे कर ले। ठीक है। सैटरडे को, जी सर, सैटरडे 7 संडे। o'clock इंशाल्लाह, ठीक है। ओके सर, ठीक है आपने सर। हर किसी ने ओके सर, इसकी ओके सर। अटेम्प्ट करनी है, होना ना होना बात की बात है, लेकिन जो कोई अटेम्प्ट करे वो मुझे अपने प्रॉब्लम्स डिफाइन कर दे कि भी मेरा ये प्रॉब्लम है। ओके सर। ओके सर, श्योर सर। ठीक होगी बात जी?
हाँ तो सर next 2 तो 3 और काफी 4 आपके करने हैं ना ये तीनों? तीनों, हाँ जी तीनों, सेकंड जी। थर्ड एंड फोर्थ। ओके सर। सर जी सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी जनाब। सर सिलेबस बहुत हैवी होता जा रहा है सर, मिड ही ले लें। बेटा जब तक यूनिवर्सिटी नहीं कहती हम नहीं ले सकते, और फिलहाल यूनिवर्सिटी ने हमें कोई गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं की मिड टर्म की, तो उसमें मसला क्या है, सिलेबस हैवी होता है तो जब मिड टर्म का आएगा तो हम आपको बता देंगे ना कि यहाँ से यहाँ तक मिड टर्म है। सर वो दोनों कलेक्ट सर होते बोल जा रहे रहे हैं हैं, कि मिड का भी फाइनल फाइनल। साथ लेंगे। ये अच्छा है ना, फाइनल पहले मिड हो फिर बिल्कुल भी फाइनल अच्छा हो और नहीं है एक ही सर। सिलेबस हम हो। सर 6 पेपर पहले इन्होंने मिड्स के लेने हैं और फिर 6 फाइनल के लेंगे हम। ये भी तो सोचिए पूरे सेमेस्टर में सवाए उस आखिरी टाइम के पेपर भी तो कोई नहीं हुए आपके, थकना नहीं किस बात पर सर, है? ये हो जाए ना कि फाइनल और मिड को मर्ज कर दें, अलग-अलग ना हो, नहीं नहीं वो बेटा एक ऐसा हो नहीं ठीक सकता, चीज है। ऐसा हो नहीं सकता कि ये मर्ज हो जाएं, ये हमेशा हमेशा सेपरेट ही आएंगे। हाँ सर ये तो ये है, ये गलत तो है। है। सर एक चले ही टाइम मैं में इतना अब सिलेबस सर, जी जी एक ही टाइम में इतना सिलेबस, वो जैसे कह रहे हैं फाइनल और मिड एक ही दफा आप यूनिवर्सिटी आएंगे तो ले लेंगे। तो बेटा वो अभी तो कुछ पता नहीं है, जब आएगा जब कोई ऐसी चीजें डिसाइड होंगी ना, ये हमें इन्फॉर्म किया जाएगा, तब हम आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल टेंशन वाली कौन सी बात है, फिलहाल तो जी सर कंटेंट है, बिल्कुल कवर करते जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है सर, कोई टेंशन नहीं है सर, ये हाँ ऐसे ही लोग परेशान कर रहे हैं दूसरों को भी। और मैं अब इसके बाद गूगल फॉर्म शेयर करता हूँ, अटेंडेंस आप प्लेस कर दीजिएगा, ठीक है? ओके सर, ओके ओके थैंक यू।